What an important film. What a beautifully important film. It's an important film because it takes a very specific story and makes it large. As far as the film goes, it's beautifully shot, supremely well acted. The music is at the right temperature in all the places it needs to be, and the direction is lovely. The film is real, it's honest. At times it's tender, at times it's brutal, but it's never, ever unforgiving. It's a very generous film. This is a film that will stay with me for some time, and I'm gonna really think about it, and I'm gonna feel it for some time. And I think that's a beautiful thing about cinema and films that can do this, is they don't just tell you a story, they give you something to think about and something that you want to actually do something about and make a change. So I just want to say to the filmmakers, bravo, and to any person who's considering watching this movie, stop thinking about it and just go watch it, because you will not leave disappointed. You will be truly moved by something very special. So well done to the filmmakers, and thank you so much for giving me the opportunity to see it and talk about it. Really and truly, thank you. Shukriya. So अभी हम एक फिल्म देख के बाहर आए हैं, the trial of a film called Hemolymph. The team has to be congratulated to be that strong enough to and that bold enough to go for a subject like this and do all the hard work that goes into doing the development and researchment for the script. I feel the producers to take a project like this with all conviction, the director जिन्होंने पूरे अपने passion के साथ ऐसी picture बनाई है, and of course the lead actors. But watch the film and then you'll know why we are so passionate about wanting you to watch the film. Yeah. दिग्दर्शकाचं आणि संपूर्ण टीमचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो. अशा पद्धतीची एक कलाकृती निर्माण करणं याला प्रचंड मोठं धैर्य लागतं, आणि ती निर्माण करून एक छोटासा आवाज, एक छोटीशी पणती म्हणूया, ती यासारख्या कलाकृतीने जेव्हा आपल्यासमोर पेश केली जाते तेव्हा त्याचं महत्त्व माझ्यासारख्या कलाकाराच्या दृष्टीने खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. आणि दिग्दर्शकाला आणि याच्या मागे जे कोणी लोक उभे आहेत त्या सगळ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा आणि मनोमन अभिनंदन. I think all the actors are so good. Realistically, they have acted very nicely. And a mass appeal to the contrary. I felt this is a very commendable attempt, and I wish a great success to the entire team. आदाब, नमस्ते. मैं नावेद अत्तार, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ND9 स्टूडियो. आज मेरी फिल्म हीमोलिम्फ जिसका मैं को प्रोड्यूसर हूँ. आज मैंने मेरा फिल्म का प्रीव्यू देखा. 3 साल की मेहनत आज रंग लाई है. मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये फ़िल्म की जर्नी में फ्रॉम अ फर्स्ट डे साथ में था. मैं मेरी टीम का, मैं मेरे मेंबर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे पर भरोसा रखा और मुझे इस फिल्म में काम करने का, साथ में एक साथ 3 साल निकालने का मौका दिया. मेरे फिल्म के डायरेक्टर सुदर्शन गमोरे, वो तो मेरा भाई है, वो बहुत आगे बढ़ेगा. उसकी लाइफ के लिए मैं उसको बहुत बधाई देता हूँ. और इस तरीके की फ़िल्म ज़िंदगी में आनी चाहिए, आगे हम लोगों ने देखनी भी चाहिए. तो मैं फिर से सबका शुक्रगुज़ार करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये फ़िल्म में, मेरी टीम का, आपने मुझे ये फ़िल्म में काम करने का मौका दिया. थैंक यू सो मच. और ये फ़िल्म 27 मई को आप सब लोग थिएटर में जाकर देखें. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा था, लाइक स्टार्टिंग से लेके एंड तक. इट्स
बहुत मीनिंगफुल था और सभी कास्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, स्पेशली जो मेन कास्ट है, एंड इट्स वंडरफुल, इट्स रियली वंडरफुल फॉर वॉचिंग। बहुत हार्ट टचिंग था। सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे थे। जहाँ पर एक्चुअली सॉन्ग्स चलाने चाहिए थे वहाँ पर चला है। म्यूज़िक इट्स वंडरफुल, साउंड्स वंडरफुल। या ऑलराइट, या दैट्स इट। I thought the film was very thought-provoking and a very honest attempt at depicting a very real subject. And I wish the team of the film all the best for their upcoming release. I mean, आज तक मैं एज एन इंडिविजुअल मैं सिर्फ ये सुनता आ रहा था कि बहुत सारे गुनहगार जो अक्यूज्ड है, जो अक्यूज्ड नहीं है, वो लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बुक है, उसके अकॉर्डिंगली इसमें फंसते चले आ रहे हैं। जो ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, ये आज तक ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं हुई है, और आगे का तो मेरे को पता नहीं, बट अभी तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग सिर्फ एक नाम, एक टैग की वजह से, जस्ट बिकॉज वी आर मुस्लिम या जस्ट बिकॉज वी आर कोई अनदर रिलीजन या अनदर कास्ट के है, उसके वजह से उन्हें आई कैन से ना चाहते हुए भी इंक्लूड किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। एक फॉर अ स्पैन टाइम समझ में आता है, लेकिन हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ नहीं समझती है कि उनके पीछे फैमिली है। जो ये मूवी से जो मैंने जो पर्सनली जो ऑब्ज़र्व किया कि एंड ऑफ द डे आप तो सफ़र करते ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली सफ़र करती है, और वो बहुत मायने रखता है। कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखते हुए कि अगर हम इस चीज़ को, अगर कोई इतना बड़ा कोई केस है जो पूरे इस पे ट्रेंड में चल रहा है, जो इतना बॉम्ब ब्लास्ट का केस है, उसको अगर आप लोग फास्ट ट्रैक पे डालें और ये चीज़ अगर आप जल्दी सॉर्ट आउट करो, ज़्यादा बेटर है रेदर देन आप किसी को सिर्फ केस खींचे जा रहे हो, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई बिलीव फैमिली सफ़र करती है, और वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत दुख वाली बात है। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, this is something which should change, not immediately but definitely it should change. Thank you. What an important film. What a beautifully important film, because it's an important film because it takes a very specific story and makes it large. It's not just about the story of Wahid and the July 11th bombers, but also about the injustice of a system that is not listening to people or doing the job of delivering justice, but delivering the job of injustice. And it's an important film because it talks about that on so many levels, not just in the court and not just in the jail, but also in the family, and how Wahid missed not only the years of his children's lives, but also his father's passing, and just all of those years that he's lost with his brothers, his wife, his children. Those don't come back. And it's not just an injustice to Wahid, it's an injustice to those children, it's an injustice to his family. And he fought hard, but the justice that he was given was denied to his cellmates, who became his brothers, and one has to wonder why that's the case. As far as the film goes, it's beautifully shot, supremely well acted. The music is at the right temperature in all the places it needs to be.
and the direction is lovely. The film is real, it's honest. At times it's tender, at times it's brutal, but it's never, ever unforgiving. It's a very generous film because it shows you who these people are in an unapologetic, real way. And it's very touching and moving. Riaz's performance as Wahid is, he is this character in such a real way that, you know, coming out of the film right now, I'm almost a little jarred. I'm a little like punch drunk because I'm struggling to connect all the dots. And I think that's the most beautiful thing about the film, is that this is a film that will stay with me for some time, and I'm gonna really think about it and I'm gonna feel it for some time. And I think that's a beautiful thing about cinema and films that can do this, is they don't just tell you a story, they give you something to think about and something that you want to actually do something about and make a change. So I just want to say to the filmmakers, bravo, and to any person who's considering watching this movie, stop thinking about it and just go watch it, because you will not leave disappointed. You will be truly moved by something very special. So well done to the filmmakers, and thank you so much for giving me the opportunity to see it and talk about it. Really and truly, thank you. Shukriya. आपने कभी चींटी मारी है? उस चींटी को मारने के बाद उसका खून निकलता है, जो कभी दिखता नहीं पर होता है। उसी को हीमोलिम्फ कहते हैं। ये कहानी समाज के निचले स्तर के वर्ग की है, जिसे उछले स्तर के वर्ग से आसानी से कुचला जाता है। उन निचले स्तर के लोगों के खून की ये कहानी है हीमोलिम्फ। जैसा इस फिल्म की नाम से ही है, जो इनविजिबल ब्लड, तो मैं जब इस फिल्म को देखा, मैं अपने आप को ऐसा गहरा महसूस किया जैसे कहीं ना कहीं ये मेरा ही तो ब्लड नहीं है। ये जो जुडिशरी सिस्टम है, ये जो प्रशासनिक संस्था है जो बनाया गया हमारे लिए, हमारे को चालन करने के लिए बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इतना ज़्यादा कमियां हैं, कहीं ना कहीं ये हमारा ही खून चूस रहा है एक तरह से। तो ये फिल्म एक इस तरह से दर्शाया गया, वो कैरेक्टर का कोई सिनेमा नहीं देख रहा है कि सेल्फ एक्सपीरियंस, ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं मैं उसमें घिरा हुआ हूँ। बहुत बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से ये किया गया है। एक्टर ने इतना बेहतरीन रोल किया जैसे लग रहा है मैं ही खुद उसमें हूँ। तो मैं थैंक्स टू डायरेक्टर, बहुत बेहतरीन फिल्म बनाया। और जिस तरह से फिल्म मेकिंग का प्रोसेस जिस तरह से किया गया है, हाफ डॉक्यूमेंट्री हाफ सिनेमेटिक वे से, इसमें बहुत बेहतरीन एक ऐसा विजुलाइज महसूस हो रहा था, जैसे लग रहा था जैसे मैं उस स्पेस में मैं खुद घूम रहा हूँ। तो थैंक्स, बहुत बेहतरीन सिनेमा बनाया। तो आप थैंक यू, दैट्स ऑल। जय हिंद। हीमोलिम्फ वर्ड पहली बार सुना और वो एक्सप्लेन किया सर ने देखने से पहले मूवी, और जो मूवी देखी वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है, ये वर्ड जो है उसको जस्टिफाई करता है। बहुत ही खूबसूरत मूवी है। हमेशा हम बिल्कुल एक तरफ से सोचते हैं और देखते हैं, जो सुनी सुनाई बातें होती है उसी पे बिलीव करते हैं। तो एक बार मुझे लगता है सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी चीज़ों में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देती है। बहुत अच्छी फिल्म है, ज़रूर देखिए एक बार। धन्यवाद। अगर हम इस फिल्म की बात करें जो सुदर्शन गमरे जी ने इसका डायरेक्शन दिया है, स्क्रिप्ट भी खुद से लिखी है, स्क्रीन प्ले भी उनका है, तो एक कहावत है कि सच कड़वा होता है, और जो कड़वा होता है सच कहें तो अमृत वही होता है। तो एक तरह से अमृत है। अमृत का मतलब है कि सच, झूठ की दुनिया से सच ढूंढकर तलाशना बड़ा मुश्किल होता है। सुदर्शन गमरे जी की टीम ने, पूरी टीम ने उस सच को बाहर निकालने की कोशिश की है।
और ये सच सबके सामने आना चाहिए, सब लोग को पता चलना चाहिए कि सच क्या है। कहानी जो मूल कहानी है इसकी वो एक सच पर ही आधारित है। लेकिन इसके अलावा अगर हम डायरेक्शन की बात करें, फिल्म के लेखन की बात करें, या हम सारे अभिनेताओं की बात करें, तो सभी ने अपना काम बहुत खूबसूरत तरीके से किया है। चाहे वो डायरेक्शन वर्क हो, चाहे वो डीओपी का वर्क हो, चाहे वो अभिनय का वर्क हो, तो फिल्म सुपर्ब है और उम्मीद है कि सारे देशवासी इसे पसंद करेंगे, समझेंगे और अमल में भी लाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले फ़िल्म के बारे में बोलूँगा। फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। फ़िल्म स्टार्ट होने से पहले जो इंट्रोडक्शन दिया था हीमोलिम्फ के बारे में, और ये फ़िल्म ट्रू इवेंट के ऊपर बेस्ड है, ये सब मैंने सुना नहीं था। फ़िल्म में स्टार्टिंग में जब मैंने देखा ये ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड फ़िल्म है, बेसिकली ट्रू इवेंट्स ही है जो उन्होंने पर्दे पे दिखाया है सुदर्शन जी ने। इतने सादगी और इतने नेचुरल वे में दिखाया है ना, जो मैं शायद फ़िल्म ख़त्म होने के बाद सब लोग तालियां बजा रहे थे और मैं चुपचाप बैठा था। ये मेरा रिएक्शन था। ऐसा नहीं कि फ़िल्म अच्छी नहीं लगी, इसलिए कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ताली कितनी बजाऊं या किस तरह से ये जाहिर करूं कि फ़िल्म अच्छी है। सबके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे लगे मुझे। खासकर मैं ज़ुबैर, शायद उनका एक्टर का नाम है, उन्होंने ज़ुबैर का कैरेक्टर प्ले किया था, ये शाहिद भाई के छोटे भाई का कैरेक्टर। मुझे उनका एक सीन बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने अपनी एंजाइटी परफॉर्म करके दिखाई थी अपने घर के अंदर। तो मैं उनको बहुत कांग्रेस बोलूँगा और पूरी टीम को मेरी तरफ से बड़ा कांग्रेचुलेशन। फिल्म ज़रूर अच्छी लगेगी सबको। थैंक यू। पहले इंट्रोड्यूस कर दोगे तो फिर मैं स्पीक। हाय, मैं खुद एक प्रोड्यूसर हूँ इरम्स एंटरटेनमेंट की, इरम फरीदी, और ये क्रिएटिव प्रोड्यूसर मिस्टर फैजल वागले एंड एसोसिएट प्रोड्यूसर मिस्टर जुनैद शेख। हम यहाँ पे आए हैं हीमोलिम्फ। नेम ही एकदम डिफरेंट है। जब हमें बताया गया है नेम स्क्रीनिंग के लिए, तो दैट वाज रियली इन माई माइंड कि क्या हो सकता है। जिस तरीके से टाइटल बताया गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे एक्सप्लेन होगा फिल्म में। लेकिन जब मैं बैठी फिल्म देखने लगी, सच में इसके जो टाइटल को जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, अंदर से दिल टूट गया देखकर। इसलिए दिल टूट गया, जो सच में कीड़े मकोड़े जैसे हमारे भारत में लोग जो बेचारे जो गुनाहगार हैं, जो जेल में रह रहे, इतनी लंबी लंबी सज़ाएं काट रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं और उनको लंबी लंबी कहते हैं ना सज़ा मिली हुई है, कैद, जीवन भर की कैद उनको मिली हुई है। तो मैं ये कहती हूँ, अगर सरकार इस तरीके का अगर कोई प्रश्न उठाती है या ऐसे कुछ क्राइम होते हैं, तो उसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। मैं यही कहूँगी कि इसको तरीके से, और हमारी सरकार को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थैंक्स टू देम। बहुत अच्छी फिल्म है, ज़रूर देखिए, बहुत ही जल्दी ये रिलीज़ हो रही है। ओवर टू यू जी। टाइटल के हिसाब से अगर देखो, ये फिल्म मेरे को भी पहले टाइटल समझ में नहीं आया था, पर लेकिन जैसे फिल्म हमने एंड पे आई तब समझ में आया कि ये फिल्म का टाइटल क्यों ऐसा रखा गया है कि ये जो कीड़े मकोड़े की लाइफ जो होती है वो ऐसी, वैसे अभी इंसानों की लाइफ उसमें दिखाई गई है जेल में, हाउ दे ट्रीट देम। मैं इतना कहूँगा कि देयर इज़ नो वर्ड्स फॉर लाइक कुछ बोलने की कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं ये करने के लिए। सिर्फ इतना कहूँगा कि ये फिल्म हर कोने, हर इंडियन तक पहुँचनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इज द इशू, व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन इंडिया इटसेल्फ। कौन अपने लोगों का कैसे लोग कैसे ट्रीट कर रहा है, दैट्स इट। मैं इतना ही कहूँगा। हाँ, सबसे पहले मैं सुदर्शन जी को थैंक यू करना चाहूँगा, ऐसे टॉपिक लेके आए, ऐसे सोसाइटी टॉपिक लेके आए। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, दोष मैं उन लोग को दूंगा जो पढ़ाई नहीं करते, और पढ़ाई करने के साथ साथ मैं उनको भी दूंगा जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर तरह का राइट है, छोटे से छोटे लोगों को भी और बड़े से बड़े लोगों को भी। हमें कानून की नॉलेज कुछ भी नहीं होती, इसीलिए हम ट्रैक हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमारे जो चाहते हैं कि नहीं हमें सही का रास्ता मिले, तो संविधान पढ़िए। आपको भी पढ़ाएगा नहीं, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। आप लॉस जानिए। मैं एक लॉस नहीं, लेकिन मुझे सारे लॉस पता है, क्यों? मेरा इंटरेस्ट था कि मैं किसी को बचा सकूँ या किसी को एक गाइडेंस दे सकूँ।
तो मैं चाहूँगा कि हम संविधान को सीखें, जिस तरह से हम अपनी पढ़ाई पूरी करते उस तरह से हम संविधान भी पढ़ें, उस तरह से हम कानून की जानकारी रखें, नॉलेज रखें, ताकि हम इस ट्रैप में फंसे नहीं। ये कोई भी फंस सकता है, आप भी फंस सकते हो, मैं भी फंस सकता हूँ, कोई दुश्मन होता है जो हमें ट्रैक में फंसा देता है। ये बहुत बड़ा गेम होता है, और गेम को इस गेम को ख़त्म करने के लिए हमें संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान के जो रूल्स है उस पर फॉलो करना चाहिए, और हम जो कानूनी लॉज है, जो सही लॉज होते हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अगर हम फर्स्ट में जान जाए, और हाँ, और सत्य का और सच का साथ देना चाहिए। बस इतनी कहना चाहूँगा, और सुदर्शन जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा ऑल द बेस्ट तरफ से कि आपने आज हम आए और बहुत भावित हो गए, बहुत इमोशन हो गए हम। देव फौजदार जी भी जिन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया, और थैंक्स फॉर देव जी जो हमने यहाँ बुला दिया है। रियली इट्स अ वर्थ वॉचिंग फिल्म है, एक मैसेज है सोसाइटी के लिए, एक एजुकेशन के लिए भी मैसेज है, और एक सोसाइटी को अपलिफ्टिंग की ज़रूरत है, जो बहुत ही लो सोसाइटी में लोग पॉवर्टी लाइन में है या पॉवर्टी लाइन में नहीं है, ऐसे एक घर में बहुत लोग रह रहे हैं, जो सोसाइटी इश्यूज़ है उससे हम अगर बाहर निकले तो शायद एक अच्छी जो जी सकता है। थैंक यू। Hello friends, just watched the film Himolim. It is a nice film. It is very honest film actually. It is a big daring to make a film on such an issue, and heard that it is based on real events and real story. We know that there is always prejudice, and because of that prejudice, that generalization of the labeling is also there, which is also shown in this film. And it is also shown that there is denial of opportunity of being heard. I think that should be given, and it is the right of the every even the person who is facing the judiciary, he has the right to defend. I think that is beautifully presented in this film, and the Kavali that is shown in this film is really liked by me, and I wish all the best. Thank you. Just now I have seen a wonderful film, Hemolymph or The Invisible Blood by Sudarshan Gamare, and it's a kind of an indie film which talks about the injustices which have been prevailing to this minority community, and especially in relation to all this blast and whatever has happened in the past, for which like Advocate Shahid was also like kind of doing up the cases with them, and eventually he was killed, which everyone knows. I guess like this has been happening for a long time, and the atrocities of the police, which is like it's nothing which is not known, but the way the entire film was projected from one man's point of view, that is like pretty endearing, and it's really puts across like the kind of tortures and struggles, not only what they undergo in those prisons, in those 8 years detention centers and the like, but even what the family undergoes, the societal pressures, and how they are actually mocked. The people who are outside, they suffer equally. It's not the person who's inside. The person who's inside, he might suffer physically, but the person who are outside, they are even suffered, like they suffer mentally, and that's like has been projected too well. Riaz Anwar, who has done the lead character, he's done a wonderful role. That's what I'll say. And eventually, yes, like all films, this film too has a happy ending with him coming out, eventually winning the case. But the same doesn't happen with everyone. This is one true story what they the direction team has taken up, and that's how like they have been proceeding with it. But I guess like as they have also said, like all others were like pronounced guilty, and this man like eventually keeps on fighting. He fights against his fate, he fights against the system, and he comes out neat and clean. So I guess like in this, especially the kind of times what we are living in the kind times of divisive politics,
it has coming at the right time, and I think everyone should see the film to understand what actually undergoes at these centers. Thank you. सर, एज ए फिल्म मेकर हम सोसाइटी के एक पार्ट हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आपने भारत एक खोज, आपकी सीरियल थी जो आपने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे, तब से लेकर के आज तक आज जो फिल्म आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको सोसाइटी में क्या चीज़ें बदल गई हैं? कैसे हम उस शैली में कहाँ से कहाँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया से डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया तक हम शायद चले आए हैं, क्या है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इतने ज़्यादा साल नहीं हुए हैं। ओके, अगर आप देखें तो इन अ कंट्रीज़ हिस्ट्री 15 साल 20 साल इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन 15-20 साल में जो एक बदलाव आया है, तो ऐसा लगता है कि हमने वो सारे जो प्रोजेक्ट्स किए थे वो एक एज ऑफ इनोसेंस था एक तरह से, और उस वक्त तो हमें यकीन भी नहीं था कि आज की परिस्थिति ये होगी। वो काम आज बहुत रेडिकल लगता है, बट दैट इज़ ओनली बिकॉज ये माहौल इतना बदल गया है। बट आपने जो पहले कहा कि एक फिल्म मेकर हो या थिएटर प्रैक्टिशनर हो, तो हमारा काम क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम एक फ़िल्म क्यों बनाते हैं, हम नाटक क्यों बनाते हैं, क्या हमारे नाटक में समाज की सच्चाई दिखती है, क्या हम किसी तरह से कमेंट कर पाते हैं। और एक्चुअली अगर आप देखो तो आर्ट का यही एक मतलब है कि इट हैज़ टू रिस्पॉन्ड टू दिस टाइम्स, और मुझे इसलिए ये फ़िल्म बहुत ही पावरफुल लगी कि एक तरह से एक रिस्पॉन्स है। ऑफ कोर्स इट इज़ अ फिल्म मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और हर कहानी के बहुत सारे पहलू होते हैं, और आप ये नहीं चाहें, आप ये हो ही नहीं सकता कि एक कहानी में सारे पहलू हों। इट्स नॉट पॉसिबल। ये लोग कहते हैं ना कि आप एक साइड दिखा रहे हो, दूसरा साइड दिखाओ तो दूसरी फिल्म बननी चाहिए, है ना। अगर आपके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू तो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, सीधी बात है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये एक नैरेटिव है, आपको इस फिल्म को उस फिल्म के टर्म्स पे जज करना है। किसी वर्क ऑफ आर्ट का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में जज करना चाहिए। सो इट्स नॉट सच अ सिंपल थिंग, यू नो, इट्स नॉट सच अ सिंपल थिंग। ओके, अभी इस फिल्म को देख के काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल फिल्म भी है, बहुत ही करेजियस फिल्म है। इसमें बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, हालांकि ऐसे लगता है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नैरेटिव है, लेकिन एक्चुअली इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब इनका जवाब क्या होगा, ये दिस इज़ क्या कहते हैं, इट्स अ पॉइंट ऑफ डीप रिफ्लेक्शन। सिस्टमिक फेलियर्स हैं, इंडिविजुअल फेलियर्स हैं, एक तरह से जो माहौल बन चुका है काफ़ी सालों से अपने देश में, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट। मुझे लगता है कि ये ऐसी फिल्म है जो देखनी चाहिए, एंड आई मस्ट वार्न दैट इट इज़ अ डिस्टर्बिंग फिल्म, बट जितने करेज से लोगों ने बनाई है उतने करेज से हमें देखनी ही चाहिए ये फिल्म। इस समय तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट फिल्म है। इसको देख के आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, बट दैट्स गुड, क्योंकि ये जो सवाल होते हैं दे बिकम फाउंडेशन फॉर डिबेट। और आजकल जो एक माहौल है, यहाँ पे डिबेट नहीं होता है, सिर्फ लोग चिल्लाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ऐसे कुछ होगा नहीं। सो आई थिंक दिस फिल्म इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, एंड आई वुड encourage people to see it. आज हेमोलिम्फ देखने के बाद, ये फ़िल्म देखने के बाद मेरे पास ज़्यादा लफ्ज़ नहीं है उसको बयान करने के लिए, मगर ये फ़िल्म इतनी पावरफुल है कि हम सब इन स्टेट ऑफ शॉक थे कि हम समझ चुके थे कि आतंकवादी हमले के पीछे जो राजनीति है वो समझना ज़रूरी। उसमें आम हिंदू, आम मुसलमान, आम भारतीय नागरिक उसके शिकार बनते हैं, और बाद में उन आतंकवादी हमलों को कवर अप करने के लिए भी आम भारतीय लोगों को फंसाया जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत के मुसलमानों को फंसाया जाता है। उसका एक पॉलिटिकल एजेंडा, इसकी एक पुलिस प्रशासन, ATS, IB, ये जो पूरा जो एक प्रेशर बाद में आता है कि आतंकवादी हमले हो जाते हैं, मगर बाद में उनको क्लोज करने के लिए कुछ इनोसेंट्स को पकड़ा जाता है, मगर ये कुछ इनोसेंट्स की बात नहीं है।
ऐसे हज़ारों नौजवानों को फंसाया था। ये पिक्चर में आप जो टॉर्चर करके जो बयान दिलवाए जाते हैं और जो अखबारों में बाद में जो छप जाती है चीज़ें, परिवार के परिवार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर ये फ़िल्म में एक बात है कि एक मतलब एक डर तो है, मगर उसके साथ एक उम्मीद भी है। एक उम्मीद भी है और एक होप भी है कि न्याय मिलता है संघर्ष करने के बाद। और उसमें वहीद की जो पूरी कहानी है कि वो जेल में बैठे बैठे एक वकील बन जाता है। एडवोकेट शाहिद आज़मी का तुमको पता ही है कि उसने किस किस्म के संघर्ष किया था अन्याय के लिए। तो ये फ़िल्म में जो मैं तो मानता हूँ कि हर भारतीय नागरिक को देखना चाहिए। इट इज़ अबाउट एसेंशियली ए सेकुलर फिल्म, क्योंकि इंसानियत की फ़िल्म है, हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में है। और ख़ास करके ये फ़िल्म का उस दौरान आना जब भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा आक्रमण धार्मिक फाशीवाद का हो रहा है, स्टेट टेरर बढ़ते जा रहा है, और उस दौरान ये फ़िल्म रिलीज़ होनी, सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलना, यही बहुत बड़ा एक मिरेकल है। और ये जो पूरी टीम है हेमोलिम्फ की, वो लोग ने एक एपिक मतलब भारत के इतिहास में कुछ खास पिक्चर होते हैं, और मैं मानता हूँ कि हेमोलिम्फ उन खास पिक्चर में इट इज़ ए ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोसाइटी, अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द रिच ट्रेडिशन, जो हमारा एक ट्रेडिशन है मूवी मेकिंग का एंड मीनिंगफुल मूवी मेकिंग का, जिसमें से एक संदेश आता है। तो ये हेमोलिम्फ की टीम ने किया है। तो उसमें दर्द है, उम्मीद है, और अगर न्याय के रास्ते पे चलते चलते आप वो संघर्ष जारी रखोगे तो न्याय मिलता है। मगर रास्ता लंबा है, अंधेरा भी है अभी है, और उस अंधेरे में ये सिर्फ एक दिया नहीं, बहुत सारे दिए हेमोलिम्फ ने से जलेंगे पूरे देश में, और उससे ये अंधकार में एक बहुत बड़ी रोशनी की किरण और उम्मीद की किरण ये पिक्चर के माध्यम से आएगा। तो सभी भारतीय नागरिकों से ये एक रिक्वेस्ट है, हेमोलिम्फ को जाके देखिए और इस पिक्चर को प्रमोट कीजिए। जी सॉरी मैडम, अभी आपने फिल्म देखी, आप तो कई फिल्में आपने स्क्रिप्ट राइटिंग और किए हैं। मैं आपका 2 मिनट का एक ये लेना चाहता हूँ, आपके रिएक्शन। नहीं तो अच्छी फिल्म है और वक्त के लिए बहुत ज़रूरी फिल्म है, और इसमें मेलोड्रामा भी नहीं है ज़्यादा, एक्टिंग भी ठीक ठीक है, और देखने में भी ठीक ही फिल्म है, अच्छी है फिल्म। मुझे सिर्फ एक चीज़ पे एतराज़ है, मगर वो मुस्लिम सोशल में हमेशा कव्वाली होनी चाहिए, तो उसमें भी डाल दी है। मुझे लगा वो शायद मूड को थोड़ा बदलने के लिए शायद डाला होगा, तो शायद, मगर हाँ, और आज के माहौल में तो बहुत ही ज़रूरी है ये फिल्म, मगर ये फिल्म सिर्फ महाराष्ट्र में बन सकती थी, ये दिल्ली में नहीं बन सकती थी, ये यूपी में नहीं बन सकती थी, सिर्फ यहाँ ही बन सकती थी, ये भी है। थैंक यू मैडम।